Today we will proceed the topic electric field. पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था we deal with the charges much greater in magnitude than the charge on an electrode. Thus we ignore the quantum nature of the charge and imagine that the charges are distributed in a region in a continuous manner, and such a distribution of charge is called continuous charge distribution. उसके बाद हमने चार्ज डेंसिटी की बात की थी। चार्ज डेंसिटी में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी देखा था। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन L। Q यहाँ पे चार्ज है और L लेंथ है। फिर हमने देखा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग होता है, या तो सर्कमफेरेंस के अलोंग होगा या लेंथ के अलोंग होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम उसके आगे देखने जा रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी पहला हमने देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम देखने जा रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। अमाउंट ऑफ चार्ज amount of charge per unit area। Amount of charge per unit area is called surface charge density। Amount of charge per unit area is called surface charge density। This is the definition of surface charge density। Amount of charge per unit area Q upon A and surface charge density is represented by sigma। surface charge density को sigma से represent करते हैं और surface charge density sigma का फॉर्मूला हुआ Q by A। Sigma surface charge density equals to charge per unit area। Q is the total charge and A is the area। Total charge upon area। Surface charge density represented by sigma। Sigma equals to Q by A। Q is the total charge, A is the area। Then A equals to, there is a condition, if area is 1 meter square। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगी then surface charge density is equals to charge। When area is 1 meter square then surface charge density sigma must be equals to the charge Q। Sigma equals to Q and the unit is its unit of surface charge density is, the unit of charge is coulomb and the unit of area is meter square। So coulomb per meter square। The unit of surface charge density is coulomb per meter square and its dimension
is ATL raised to the power minus 2. Its dimension is ATL raised to the power minus 2, and the unit of surface charge density is coulomb per meter square. It is used in the expression of charged disk. It is used in the expression of charged disk, where we use the surface charge density. So surface charge density is used in the expression of charge disk and infinite charge plate, and also infinite charged plate. Infinite charged plate. Surface charge density is used in the expression of charge disk and also in an infinite charged plate. For sharp surface, for sharp surface, for sharp surface, surface charge density is maximum. Sigma is maximum. Sigma is maximum. If the surface is sharp, then the value of surface charge density is maximum. While for plane surface, it is minimum. While for plane surface, it is minimum. For plane surface, the value of surface charge density will be minimum, and for sharp surface, surface charge density is maximum. देखिए, अगर शार्प सरफेस होगा तो उसकी एरिया लेस होगी, और एरिया अगर कम होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगा. अगर डिनोमिनेटर लेस होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम होगी. लेकिन वही सरफेस अगर प्लेन सरफेस है, इफ देयर इज अ प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस की एरिया मैक्सिमम होगी, और जब एरिया मैक्सिमम हो जाएगी, डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी. And next, the surface charge density of any conductor. The surface charge density. Surface charge density of any conductor depends. Surface charge, the value of surface charge density of any conductor depends on its shape. Depends on its shape. Depends on its shape. The value of surface charge density of any conductor depends on its shape and depends on its shape and presence of any conductor near to it. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? शेप पे. डिपेंड्स ऑन शेप, कंडक्टर की शेप पे. और दूसरी किस पे डिपेंड करेगी? प्रेजेंस ऑफ एनी कंडक्टर नियर टू इट. Sigma, the value of sigma is maximum
on edges of charged rectangular plates. The value of sigma is maximum. The value of sigma is maximum on edges of charged rectangular plates. Charged rectangular plates. The value of sigma is maximum on edges of charged rectangular plates and vertex of a conical charged conductor. And vertex of a conical charged conductor. Vertex of a conical charged conductor. The value of sigma is maximum on edges of charged rectangular plates. Edges means edges, ये होल सरफेस और इसका एज ये हुआ, तो एज की सरफेस एरिया लेस होगी और एज की सरफेस एरिया अगर लेस होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। उसी तरह से वर्टेक्स ऑफ ए कोनिकल चार्ज कंडक्टर, कोई कोन है, कोन का वर्टेक्स एक पॉइंट होगा, पॉइंट की एरिया लेस होगी और एरिया लेस होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो दिस इज व्हाट अबाउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो डेफिनेशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा and it is defined as amount of charge per unit area. The formula for sigma, Q by A, total charge upon area. If area is 1 meter square, then surface charge density must be equal to the charge. The unit of surface charge density is coulomb per meter square and its dimensions is 8 L to the power minus 2. Where it is used? Where we use the surface charge density? So it is used in the expression of charge disk and infinite charge plate. Infinite charge plates के ऊपर या डिस्क के ऊपर कौन सी डेंसिटी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी. Surface charge density of any conductor depends on its shape. Shape के ऊपर डिपेंड करेगा और presence of any other conductor near to it. And the value of sigma is maximum on the edges of charged rectangular plates and vertex of a conical charged conductor. Now the next topic which we will discuss, that is volume charge density. The next topic which we will discuss is the volume charge density. Volume charge density. Volume charge density is represented by rho. Volume charge density is represented by rho. सबसे पहले हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी देखा था. लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा.
उसके बाद हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी देखा. सरफेस चार्ज डेंसिटी is represented by sigma, and then volume charge density, which is represented by rho. So first, its definition. So amount of charge per unit volume. Amount of charge per unit volume. Amount of charge per unit volume. Amount of charge per unit volume is called volume charge density. This is the definition of volume charge density. Amount of charge per unit volume, and volume charge density is represented by sigma. Then the formula for volume charge density, sigma equals to Q by V, charge per unit volume. Rho equals to charge per unit volume. Q is the total charge. Total charge upon volume. This is the formula for volume charge density, rho. Now its unit is coulomb per meter cube. Its unit is coulomb per meter cube. The unit of charge is coulomb and the unit of volume is meter cube. Since it is at the place of denominator, so its unit becomes coulomb per meter cube, and its dimension is 8 L raised to the power minus 3. Dimensions of volume charge density, 8 L raised to the power minus 3. It is used in the expression of spherical charge distributions. It is used in the expression of spherical charge distribution. Spherical charge distribution. जहां भी स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो को यूज करेंगे. It is used in the expression of spherical charge distributions. And if there is a sphere, then if there is a sphere, then the volume charge density sigma equals to Q by V, and the formula for V is 4 by 3 pi r cube. Volume of a sphere 4 upon 3 pi r cube, where r is the radius of the sphere. So this is about volume charge density, rho. Volume charge density is defined as amount of charge per unit volume. Its unit is coulomb per meter cube. Its dimensions is 8 L raised to the power minus 3, and it is used in the expression of a spherical charge distribution. If there is a sphere on which the charges are distributed, then the volume charge density rho is given by Q by V, and the value for volume of a sphere is 4 upon 3 pi r cube. So we have seen three types of charge density. First, linear charge density. Linear charge density is given by lambda,
lambda equals to q by L. If there is a ring or there is a circle or there is a circle, then at the place of length we use the circumference of the circular part, q by 2 pi r. Then comes to be surface charge density. Surface charge density is given by sigma. Sigma equals to q by a. Area of the surface. Surface area 4 pi r square. Then the last charge density is the volume charge density, and volume charge density is given by rho. Rho equals to q by v, and q upon the value for volume 4 upon 3 pi r. So three types of charge distributions we use: linear charge densities, surface charge densities, and volume charge density. Now the next topic which we discuss, that is linear charge distribution. Linear charge distribution. Talk about linear charge distribution. Linear charge distribution is also called unidimensional. Unidimensional. Unidimensional means along any one direction. Unidimensional means along one direction. Along one direction. So suppose there is a linear charge distribution like a straight line or circumference of a ring. There is a straight line or circumference of a ring on which the positive charge q is distributed, plus q charge is distributed along the length. Charges are distributed along the length. That's why it is called linear charge distribution. The total length of this wire, the length of this conductor is L. L is the length of conductor. And B, on which L is the length of the conductor, and on the surface linear charge density lambda. There is a linear charge density lambda because the charge distribution is linear. अगर linear charge distribution है यानी length के along है तो इसमें क्या act करेगा? linear charge density act करेगा. और linear charge density को किससे represent करते हैं? lambda से represent करते हैं. अब हमने इस whole length में हमने एक small elements ले लिया, consider कर लिया, a small element. And suppose the length of this small element is dl. A small length. Total length को तो हमने L से रिप्रेजेंट किया और इसमें हमने एक स्मॉल पार्ट ले लिया. ये एक स्मॉल पार्ट ले लिया. इस पूरे लेंथ का एक छोटा सा पार्ट ले लिया और उस छोटे पार्ट को हमने dl से रिप्रेजेंट किया. अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस लेंथ के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो q है. इस लीनियरली लेंथ के ऊपर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो q है. टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज q. इस dl लेंथ से यानी इस स्मॉल लेंथ से r डिस्टेंस पे
एक दूसरा टेस्ट चार्ज रखा है एंड दैट टेस्ट चार्ज इज क्यू नॉट, और इसका यूनिट वेक्टर आर कैट। आर डिस्टेंस पे डीएल लेंथ से आर डिस्टेंस पे डीएल लेंथ से आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स लगेगा ये टेस्ट चार्ज है, फोर्स इसके ऊपर बाहर की तरफ एक्ट होगा। तो हमने क्या लिया, हमने एक लेंथ कंडक्टर लिया जिस कंडक्टर की लेंथ क्या है एल है, और इस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों, क्योंकि चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। हमने इस पूरे लेंथ का एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया और उस स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ को हमने डीएल से रिप्रेजेंट किया। अब इस पार्ट से, इस छोटे पार्ट से आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट आर डिस्टेंस पे। तो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस चार्ज के ऊपर जो टेस्ट चार्ज है, पहले ये देखेंगे कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी की। हमने फॉर्मूला देखा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब अगर टोटल चार्ज क्यू है, पूरे लेंथ के ऊपर अगर चार्ज क्यू है, तो इस स्मॉल लेंथ के ऊपर यानी डीएल लेंथ के ऊपर चार्ज क्या होगा, ये भी ये स्मॉल होगा। अगर लेंथ हमने छोटा ले लिया, अगर लेंथ स्मॉल है तो उस लेंथ के ऊपर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू भी लेस होगी, और लेस चार्ज को हम dq से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस dq चार्ज के कारण जो कि डीएल लेंथ के ऊपर है, इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा। उसके पहले हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है q बाय l, लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या है स्मॉल है, सॉरी चार्ज क्या है स्मॉल है, तो स्मॉल चार्ज dq, और लेंथ कितनी है ये भी स्मॉल है तो dl। लैम्डा इक्वल्स टू dq बाय dl। यहां से हम dq की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, dq इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dl। यानी यहां पे इस स्मॉल लेंथ के ऊपर यानी dl लेंथ के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी, dl लेंथ के ऊपर चार्ज की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, तो वो होगी लैम्डा इनटू dl। अब हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि क्यू नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स क्या एक्ट करेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट, यानी दो चार्ज के बीच में हम फोर्स निकालने जा रहे हैं। एक चार्ज तो dq है, दूसरा चार्ज q नॉट है, और इसके लिए हम कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इनटू q2। एक चार्ज dq है, दूसरा चार्ज q नॉट है, तो q नॉट इनटू dq अपॉन r स्क्वायर एंड r कैप। r कैप यहाँ पे क्या है यूनिट वेक्टर, यहाँ पे अगर वेक्टर का साइन यूज करते हैं तो यहाँ पे भी वेक्टर का साइन हमें लगाना होगा। ये कौन सा फोर्स आया, ये F नहीं आकर के ये स्मॉल फोर्स आएगा dF, यानी इस स्मॉल चार्ज के ऊपर और स्मॉल लेंथ डीएल लेंथ के ऊपर जो स्मॉल है उसके ऊपर जो स्मॉल चार्ज dq डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस dq के कारण इस पे जो फोर्स एक्ट होगा वो भी स्मॉल होगा, और स्मॉल फोर्स को हम df से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे dq की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो डाल देंगे। तो df इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught q naught, and the value of dq is lambda into dl upon r square and r cap. So this is the expression for force acting. 1/4 pi epsilon naught q naught lambda dl upon r square upon r cap.
ये तो स्मॉल फोर्स हुआ। अब अगर हम टोटल फोर्स निकालना चाहें कि टोटल लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस स्मॉल फोर्स का इंटीग्रेशन किया जाएगा। स्मॉल फोर्स डीएफ का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ के ऊपर टोटल फोर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो टोटल फोर्स ड्यू टू लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल फोर्स ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर है, तो टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो डीएफ का इंटीग्रेशन, डीएफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इक्वल्स टू एफ टोटल फोर्स। यहां से कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया जाएगा, तो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर ले लेंगे और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। और इंटीग्रेशन किसके अलोंग हो रहा है, तो लेंथ के अलोंग हो रहा है, तो यहाँ पे L लगा देंगे। तो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट lambda into dl upon r square r cap. So this is the expression for total force acting on the length L of the conductor. तो यहाँ पे हम क्या देखा, हमने क्या देखा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर टोटल फोर्स निकालना हो या टोटल फील्ड निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और इसके ऊपर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने इस पूरे लेंथ में से एक छोटा पार्ट ले लिया, यानी हम ऐसे भी समझ सकते हैं जो टोटल लेंथ है ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे लेंथ से मिलकर के बना है। इस छोटे लेंथ dl के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी स्मॉल होगा, तो चार्ज dq है। यहां से r डिस्टेंस पे एक दूसरा टेस्ट चार्ज q नॉट रखा है। अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस स्मॉल चार्ज के ऊपर जो dl लेंथ के ऊपर है उसके कारण इस q नॉट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया कूलम्स का, dF इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, q1 की प्लेस पे q नॉट, q2 की प्लेस पे dq अपॉन r स्क्वायर, यहां से आते हैं डिस्टेंस एंड r कैप, ये स्मॉल फोर्स आ गया। अब हमें टोटल फोर्स निकालने के लिए स्मॉल फोर्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल फोर्स आ जाएगा। तो dF का इंटीग्रेशन f, राइट साइड में इंटीग्रेशन करने के लिए कांस्टेंट टर्म को बाहर किया जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टेकन आउटसाइड एंड इंटीग्रेशन नीचे L यूज करेंगे। L का मतलब कि लेंथ के लॉन्ग इंटीग्रेशन हो रहा है और लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। तो इस तरह से लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन यानी यूनिडायमेंशनल में हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे 2 डायमेंशनल भी कहा जाएगा। 2 डायमेंशनल क्योंकि यहाँ लेंथ के अलोंग और ब्रेथ के अलोंग 2 डायरेक्शन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल। अब यहाँ पे हम एक सरफेस को कंसीडर करेंगे। एक सरफेस ले लिया, इस पे टोटल चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज Q इस टोटल सरफेस के ऊपर प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे टोटल चार्ज की वैल्यू
Q है और इस सरफेस पे टोटल इस सरफेस की एरिया S है, टोटल सरफेस की एरिया S है। इसमें हमने एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया। अब इस स्मॉल पार्ट की एरिया क्या होगी? ds होगी। अगर टोटल सरफेस की एरिया S है तो एक स्मॉल पार्ट ले लिया, इस स्मॉल पार्ट की एरिया कितनी होगी? ds होगी। और टोटल चार्ज अगर इसके ऊपर Q है तो इस स्मॉल सरफेस के ऊपर जो हमने छोटा सा स्मॉल सरफेस कंसीडर किया है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? dq होगा, यानी लेस चार्ज होगा। अब इस सरफेस से r डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा है q0, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा df, ये बाहर की तरफ फोर्स होगा और इस फोर्स की डायरेक्शन r कैट, यूनिट वेक्टर। अब इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम फाइंड आउट करेंगे कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। एक तो df की वैल्यू क्या होगी और टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ चूंकि सरफेस के ऊपर टू डायमेंशनली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो यहाँ पे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज करना होगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और सिग्मा इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। हमने छोटा सरफेस लिया है, इस छोटे सरफेस के ऊपर चार्ज dq है और इसकी एरिया ds है। सिग्मा इक्वल्स टू dq बाय ds। यहां से हम चार्ज, स्मॉल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। dq इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ds, dq इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ds। अब इन दोनों के बीच यहाँ पे चार्ज dq है, dq और q0 के बीच के लिए फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे जो कूलम्ब्स लॉ के लिए हम यूज करते हैं। तो dF स्मॉल फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q0 dq अपॉन r स्क्वायर एंड r कैप। अब इस dq की वैल्यू डाल देंगे सिग्मा इनटू ds। So dF equals to 1/4 pi epsilon naught q0 and the value of dq is sigma into ds upon r square and r cap. This is the small force acting on the small area ds where the charge is small also dq. ये तो आ गया फोर्स, स्मॉल फोर्स। अब हमें टोटल फोर्स निकालने के लिए, हमेशा टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। तो टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन F। तो F कैसे आएगा? इस dF का इंटीग्रेशन कर देंगे, dF का इंटीग्रेशन F एंड दिस इज इक्वल, यहां से कॉमन टर्म को बाहर लेंगे q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अब यहां पे सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन हो रहा है तो L नहीं लिख करके S लिखा जाएगा एंड सिग्मा इनटू ds अपॉन r स्क्वायर इनटू r। So this is the expression for force in the term of surface charge density sigma। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फोर्स देख रहे हैं और एक सरफेस ले लिया, सरफेस के ऊपर टोटल q चार्ज है प्लस q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें हमने एक स्मॉल सरफेस एज्यूम कर लिया। अगर टोटल सरफेस की एरिया S है तो इस स्मॉल सरफेस की एरिया ds होगी और टोटल चार्ज अगर होल सरफेस पे q है तो स्मॉल सरफेस के ऊपर चार्ज भी स्मॉल होगा और स्मॉल चार्ज को dq से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहां से r डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज q0 है, उस q0 के ऊपर हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं, पहले इस स्मॉल एरिया के कारण फिर इस टोटल एरिया के कारण। तो स्मॉल एरिया के कारण जो फोर्स होगा उसे dF से रिप्रेजेंट किया जाएगा। dF equals to 1/4 pi epsilon naught the value of charges q0 dq upon r square r cap। यहां से dq की वैल्यू डाल दी तो सिग्मा ds upon r square, ये स्मॉल फोर्स आ गया dF।
अब टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए इसका हमने इंटीग्रेट कर दिया कांस्टेंट टर्म को आउटसाइड एंड इंटीग्रेशन अलोंग द सरफेस सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को थ्री डायमेंशनल कहते हैं। थ्री डायमेंशनल यानी थ्री लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों के अलोंग चार्जेस जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे हमने एक सरफेस ले लिया, इसके ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये थ्री डायमेंशनल प्लेन है। और इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है। अब इसमें हमने एक स्मॉल सरफेस एज्यूम कर ली, थ्री डायमेंशनल स्मॉल सरफेस एज्यूम कर लिया। इस स्मॉल सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, स्मॉल है, dq। इस स्मॉल सरफेस के ऊपर चार्ज स्मॉल है, dq। और यहां से r डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज है q0 या r कैप, इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है df। फोर्स एक्ट कर रहा है स्मॉल फोर्स df। और इस टोटल सरफेस की सपोज कर लो कोई थ्री डायमेंशनल सरफेस है, स्फीयर है, अगर इसकी वॉल्यूम d है तो इस छोटे पार्ट की जो हमने एज्यूम किया है वॉल्यूम कितनी होगी, dv होगी। अब यहाँ पे हम थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यूज किया जाएगा एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय रो। रो इक्वल्स टू dq अपॉन dv। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसलिए यहाँ पे हम dv यूज कर रहे हैं। रो इक्वल्स टू dq बाय dv। यहां से dq की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो dq इक्वल्स टू रो इनटू dv। द वैल्यू ऑफ dq comes to be रो इनटू dv। now we will find the small force acting on the charge q0। वापस वही फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ से df इक्वल्स टू 1 upon 4 pi epsilon naught and q naught dq upon r square and r cap। so 1 by 4 pi epsilon naught q naught and the value of dq is written as rho into dv, rho into dv upon r square r cap। this is the small force acting on the test charge due to the small element whose volume is dv and on which the charge is the small also dq। अब टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए वही इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ df इक्वल्स टू f इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे s नहीं लिख करके वॉल्यूम लिखा जाएगा क्योंकि वॉल्यूम के अराउंड हो रहा है इंटीग्रेशन एंड कांस्टेंट टर्म टेकन आउटसाइड। So q naught upon 4 pi epsilon naught and rho dv upon r square and r cap। So this is the expression for total force acting on the test charge q naught due to the volume charge distribution
यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, रो है, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हमने तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तीनों के लिए हमने फोर्स की वैल्यू देखी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, intensity of electric field, intensity of electric field due to linear charge density यानी lambda, intensity of electric field due to linear charge density lambda, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इसके पहले हमने फॉर्मूला देखा था फोर्स का, F इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन किया था लेंथ के अलॉन्ग L एंड लैम्डा अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये हमने पिछले एक्सप्रेशन में देखा था, लैम्डा अपॉन R स्क्वायर R कैप और यहाँ पे dl यूज हुआ था। ये हमने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला था और फॉर्मूले से हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल्स टू होता है F बाय Q नॉट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी Q नॉट का डिवाइड हो जाएगा। इसमें अगर हम Q नॉट का डिवाइड करते हैं तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और इसका एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन L lambda by R square and R cap into D. So this is the expression for electric field and this is the expression for electric force due to linear charge distribution. अब देखेंगे intensity of electric field due to surface charge distribution. Intensity of electric field due to surface charge distribution. सरफेस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे। उसके पहले फिर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F जो हमने पिछले एक्सप्रेशन में देखा था, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ S आ गया था, लैम्डा की जगह पे हमने सिग्मा यूज किया था, तो सिग्मा अपॉन R स्क्वायर R कैप और dl की प्लेस पे ds यूज हुआ था, R कैप इनटू ds। अब वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए वही फॉर्मूला E इक्वल्स टू F बाय Q नॉट, यहां से Q नॉट का डिवाइड करेंगे फोर्स में, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड इट कम्स टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन S एंड सिग्मा अपॉन R स्क्वायर R कैप इनटू ds। So this is the expression for intensity of electric field due to surface charge distribution. Third, intensity of electric field due to volume charge distribution. Due to volume charge distribution. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले फिर हम फोर्स की बात कर लेते हैं।
हमने फोर्स के लिए निकाला था एक्सप्रेशन Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन S की प्लेस पे V आएगा, सिग्मा की प्लेस पे रो आएगा, रो अपॉन R स्क्वायर R कैप, ds की प्लेस पे dv यूज होगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे E F by Q naught। Again Q naught gets cancelled and it comes to be 1 by 4 pi epsilon naught और यहाँ पे V आ जाएगा और रो अपॉन R स्क्वायर R कैप into dv। So these are the three intensities due to linear charge distribution, due to surface charge distribution and due to the volume charge distribution। आज की क्लास कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्लास फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे।